Please turn on your cameras. Hi, Karun. Hi, Ginny. Hello, Ankush. Hello, ma'am. Dr. How are Mee. you? I'm good. I'm good. Good to see you all. Uh, okay. So as per the schedule, now tell me one thing, before even I start with today's session, there are certain things that we have to do. Now, as per the schedule, I'm supposed to show you how to identify the correct categories, your book launch date, and I have to share the secret to become Amazon bestselling author today. And the next session that we have, that is where we do the ebook pricing strategy. We upload the manuscript and we create the KDP account. And the last session will be more about paperback and how you can take this journey ahead. So, because the last session will not be happening anytime soon because I'm actually traveling from 27th till I'm here for a day, probably for the probably just the 4th, and then again I'm traveling. I'll be back by 9th. So the question out here is, how do you want me to finish it off? Like, you want me to finish all the 8 sessions into just these 2? मैं खत्म कर दूं आज और Friday के बीच में? Yeah, will you guys wait until I'm back and then do the next session with me? Because the original plan was, if we did not miss the last week wala session, by 24th or 25th वो खत्म हो जाता था. लेकिन वो cancel करना पड़ा, and then because of which now I don't have any space, like that's something that I can manage. कुछ बोलिए, मैं पूछ रही हूँ तो I'm just waiting for your reply. Ma'am, I think we will wait for you. Okay. What about? So, by what will be the last session? When? Okay. So I'm here for a day, as I said. One second, I'm just checking my calendar. No, So what I'm trying to understand is that besides the paperback, will we be able to finish the ebook, all of those before? I'll do that before I leave. Okay. Actually, this Saturday again I'm free, but the problem is, since I'm leaving, there are like too many things to be like, that I have to just wind up. So that's the only reason I've kept the coming Saturday, that is 26th, free for myself. Because taking care of professional and personal things. So the ebook wala thing will be completed by this Friday, this weekend, whenever we have next session, I think on Friday. The only thing, like the paperback and the journey ahead, will be left. So probably we can do it either on the 9th or anything between the 12th and the 16th. That can be done. But yeah, the other one, the ebook thing will be finished before this. The ebook thing will be finished. Or else, if you want, I can just combine everything into 2 sessions and finish it off. No, combine nahi hoga, because the last session takes time. So paperback anyhow has to be done after the ebook is launched. So my guess is like, I would say, because Ginny has finalized her date, but I haven't seen Ankush and Karun and Dr. Mee's details anywhere, like in the group. So my whole guess is like, ensure that your ebook is published by the time we join back for the last session. Between the 12th and the 16th, to be on a safer end. So if I'm back before that, I'll just put it in have the team put it in the group, and if you guys are available, we can plan it for the 9th probably. There was an Excel sheet, I think उसपे मैंने details update किए थे, आपने share किया था. If
तो उसमें कुछ लिंक्स थे, कुछ लोगों की लाइव है बुक्स, बट आई थिंक हाँ, दे आर इन सम अदर ग्रुप, आई ट्राई टू कम्युनिकेट वो उस पे, बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। मैंने पूछा भी किसी because many people they have not even updated those details. हम्म हम्म We have been running this book writing thing for a very long time. So there are many people who don't even take interest because उनके लिए वो book लिखना ही important था. Then हम्म उसके बाद वो sales के लिए मुड़ के भी नहीं देखते हैं. हम्म So whatever data that we could find, तो हम लोग ने कुछ चीजों को add कर दिया है. We are waiting for their update and everything. So because I changed my phone, तो मेरे पास भी सारा data है नहीं. हम्म। So I think the 8th wala session between 12th and 16th is okay for you guys, right? For me, it works because at least ebook will be done by then. हाँ, Okay. तो by then because I don't want you ebook वाला thing to be stuck. So Dr. Mir और अंकुश आपका जो है ebook तब तक publish हो जाएगा Amazon पे live? मैम मेरा ई बुक हो जाएगा Yes, ma'am. On 12th May it will be published. Perfect. And Dr. Mir आपका कभी तक हो जाएगा? हाँ 30 अप्रैल तक हो जाएगा 30th of April. जी। ओके आप लोगों ने जैसे गिनी ने करुण आपका कभी हो रहा है? टारगेट तो मेरा 2 मई है, तो मुझे लग Okay. रहा है थोड़ा सा 1 वीक का लगेगा उसमें टाइम, क्योंकि अभी पिछला हफ्ता ना बहुत खराब गया अभी शेड्यूल, तो मे भी Okay. शायद 4-5 डेज बढ़ा सकते हैं इसमें। मैं सी कोशिश टू इट, करूंगा, लेकिन फिर भी 2 मई के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई करना एवरीवन कि 12 मई के पहले आपका बुक लाइव हो जाए. सो दैट मीन्स आपको आपका मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड करना पड़ेगा एनीवेयर बिटवीन 5th to 7th के बीच में, अगर आपका डेट फाइनल नहीं हुआ है तो. ठीक है, बिकॉज हम लोग जब भी लास्ट सेशन में आएंगे तो वो टाइम पे योर बुक शुड बी ऑलरेडी लाइव ऑन Amazon. दैट्स द होल आइडिया. अंकुश, आई हैव नेवर सीन यू बाय द वे. आज भी कैमरा का प्रॉब्लम है. Just a minute, ma'am. I'll log in from my cell phone. हाँ, बिकॉज अभी सेशन खत्म होने के लिए आ रहे हैं, मैं सिर्फ आवाज सुन रही हूँ, लोगों को देखा ही नहीं है कभी. सो ठीक है, तो हम लोग वैसे कर लेते हैं ताकि वो पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा. ई बुक का मैं खत्म कर देती हूँ जाने के पहले. So I just have बोलिए. one more question. अभी जो बोलिए. reviews डालते हैं, does that also matter for the ranking? People who treat it makes a difference. And okay, now people who जिनका हम प्री पेमेंट लेकर और हम उसको पेड करके जो डालेंगे इनपुट, like whoever is paid us in advance, I will ask them also for putting reviews. Okay, so are they also going to be verified buyers because उनकी पेमेंट तो हमने पे करी है ना ईमेल एड्रेस डालकर, they will be वो email, it is not based on the payment from where the payment is done. It is based on the email ID where you are actually sending the ebook. और वही email ID से अगर वो लोग लॉग इन करके रिव्यू डाल रहे Amazon हैं तो ऑलरेडी वो अकाउंट होना वेरीफाइड चाहिए परचेस. उनका, हाँ ऑलरेडी हाँ हाँ, अकाउंट होना चाहिए उससे ना, तब करेक्ट तब करेक्ट. वेरीफाइड होगा। सी और और कभी let कभी ना कैसे, वन सेकेंड लेट मी फिनिश दिस. कभी कभी कैसे होता है कि मेनी पीपल हु एक्चुअली बाय योर बुक हम्म दे डोंट रिव्यू इट. हम्म हम्म ओके, तो कई बार ऐसे हो जाता है कि लाइक यू कैंट पुट योर रिव्यू, बट से हमको पता है कि वेरीफाइड परचेज मतलब एक्चुअली उन्होंने खरीदा है. और किसी ने के सामने अगर वेरीफाइड परचेज नहीं है तो वो बिना खरीदे हुए वो फुकट वाले रिव्यूज है, ये हमें पता होता है. बट इट डजंट नेसेसरीली मीन लाइक इफ यू आस्क अ लेमैन दे डू नॉट नो द No, no, डिफरेंस. I understand, but no, what I'm asking is usually people know, like जैसे मुझे पता है, और I'm asking from the point of view of ranking. Amazon को तो पता है ना, from that नहीं, इट हेल्प्स, डोंट वरी. it helps. Because And it helps with the reviews also, because now what happens I when have buyers. by Go ahead, finish it off. I have many people who would be happy to review. I have a lot of people जिनको मैं अगर बोलूँ तो, but my point is when the book is live, so I ask them to go and buy it that day, or I just पहले से ही मैं उसको ensure करूँ सबको ही. My, let's say there will be about
10 to 20 people I think who can, when I say do it, they will just go do it. But वो उनको मैं पहले से ensure करूँ या उनको बाद में, that is, are you getting what I'm saying is, because I want to get the reviews and at that time they would want to read. अभी बोलूंगी तो उस टाइम तक review तो भूल जाओ, वो email पे पहुंच जाएगा and मैं बोलूँ अभी? yeah. Done. See, what I want you to do is like जो भी 10-20 लोग हैं आपके पास, see to it कि आप उनको उनसे पैसे ले लो, ओके, एंड वो ऑर्डर्स कंफर्म कर लो ई बुक के लिए, एंड टेल देम कि 2 मई को या 3 मई को जब मेरा बुक लाइव होगा, Amazon आपको डायरेक्टली ईमेल कर देगा आपके ईमेल आईडी पे. सॉर्टेड? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू गो हेड एंड टेल देम कि आप खरीदो, people are very lazy. They don't buy it. Okay. And secondly, when you already have those 20-30 people जो भी है who are about to go ahead and actually read your book or buy your book, you have the power to go ahead and actually play around with Amazon's numbers. So you should, when actually you're putting, the email IDs for the pre-orders, जो आपके पास पैसा है. So never ever go ahead and put all the email IDs at one go, because Amazon starts looking at it as a spam. So always put 5 to 7 email IDs, like, every like 3 or 4 hours. Because जो Amazon का जो algorithm है, अगर हम लोग देखेंगे तो like, it fluctuates every 2-3 hours. तो वो रैंकिंग में हेल्प होता है. That's why I always say कि like जो प्री ऑर्डर्स के जो नंबर्स है वो आपके पास रेडी रहेंगे, तो यू कैन ऑलवेज कंट्रोल कर सकते हो नंबर्स के साथ, खेल सकते हैं आप. Okay. Hope that answers your question. Yeah. Yes. Okay. Ankush, I have a question for you. Did you buy my book or you read it for free? Yes, ma'am. I buy your book. तो आपने स्क्रीनशॉट ग्रुप में क्यों नहीं डाला? शेयर करता हूँ. बट आपने जो मुझे रिव्यू डाल के भेजा था, वो रिव्यू नहीं आया है. हाँ पता है, पर मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों आया. हाँ, तो आपको वापस से पोस्ट करना पड़ेगा. नहीं, मैंने 2-3 ग्रुप बार में. किया मैम. अच्छा. हाँ. Are you using the same email ID to log in from where you purchased, वही चीज यूज कर रहे हो रिव्यू के लिए? हाँ. यस. एक बार फिर से कोशिश करके देखिए, क्योंकि चलेगा, मुझे वहां पे मुझे रेटिंग दिख रहा है पर रिव्यू नहीं आया है. ओके. मैं देखता हूँ. Okay, thank you. Now I have another thing for everyone. जब भी आप लोगों को बोलेंगे ना कि हमारी बुक को रिव्यू करना, so many people are lazy, they will not review it. Okay. And ये जरूरी नहीं है कि जो लोग एक्चुअली बुक खरीदेंगे वो लोग बुक पढ़ेंगे. Okay. So what you do is like, create 8 to 10 reviews in your own words. और उनको बोल देना कि इसको थोड़ा सा ट्वीक कर लो आप, and you should always go ahead and put it on there from their email ID. But they should go ahead and use the same email ID that is, one second. That is supposed to be used by them, that is actually used by them to buy the book, ताकि वो verified purchase दिखाएं. अगर verified भी नहीं होगा, just keep this in mind. You should never, as an author, you should never review your book. हाँ, बट आप रिव्यूज बनवा के आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल में सबको डालने के लिए बोल सकते हो. क्योंकि इनिशियली हमेशा एनीथिंग दैट इज स्टार्टेड न्यू, लाइक लेट इट बी अ रेस्टोरेंट और अ रिजॉर्ट और एनीथिंग, द फर्स्ट 10 to 15 रिव्यूज जो आपको दिखते हैं, वो सारे के सारे जो रिव्यूज होता है ना, वो नोन एंड ट्रस्टेड मेंबर्स ही रिव्यू डालते हैं. क्योंकि when people will come down to your page, when they actually go ahead and see your page, they say अच्छा रिव्यू है. क्योंकि ये डिफरेंस हमें पता है, वो वेरीफाइड परचेज है. See, when I was not into doing this book and everything, मुझे वेरीफाइड परचेज और नॉर्मल रिव्यू में कोई फर्क नहीं दिखता था.
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप अभी Amazon पे अपना बुक डाल रहे हो, इसलिए आपको पता है वो वेरीफाइड परचेस होना चाहिए। Okay. वन सेकंड, मेरा वॉइस एको हो रहा है। हाँ, सो यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड अबाउट लाइक दीज कपल ऑफ थिंग्स। तो अपने फैमिली मेंबर्स को आपके पास 8-10 रिव्यूज रेडी रखना, पर सी टू इट कि एक साथ रिव्यू पोस्ट नहीं करना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिन पे पोस्ट करने के लिए बोलना। लाइक सारे रिव्यूज कई बार ऐसे हो जाते हैं when I'm like I think 6 months back I was planning to visit some newly opened restaurant, and that time मैंने जाके उनका गूगल पे रिव्यू खोला, and that गूगल पे रिव्यू इतने अच्छे थे, 4.9 का रेटिंग था, and when I actually went ahead and उसको ठीक से स्टडी किया तो सारे रिव्यूज एक ही दिन में आए थे। तो आज एक दो डाल दो, कल एक डाल दो, परसों एक दो डालो, प्ले अराउंड दैट वे, ठीक है। Ranking, for the ranking, how much period is important? How many days that we see? For the hitting the number one bestseller, the first 48 hours are very crucial. You should have that amount. See, I'll tell you, Maria, she hit number one bestseller in 7 pre-orders. लेकिन उसका बुक लॉन्च हम लोगों ने किया था। उमा शंकर जी had around 21 pre-orders. उनका भी बुक लॉन्च हमने किया था। Neelkanth Rathod had around 55 or 60 pre-orders. He did it on his own, but he called me. I remember he calling me up late in the night, and he said like, "Itna pe hi hai," and everything. I said, like, I told him how to put those pre-orders, and that actually helped him because itna pre-orders hone ke bawajud bhi he was ranking low. Hmm. And the way I said, like, every 3-4 hours, go ahead and put it. So every 3-4 hours, put it, and that's how we put it, put him back on the spot, like, the number one spot. So actually our session 8 is always about, the options that you can choose as an add-on service, because we have a lot of add-on services. जैसे आपका स्ट्रैटेजिक बुक लॉन्च, आपका कैटेगरी रिसर्च है, आपका कीवर्ड रिसर्च है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हम लोग करके देते हैं क्लाइंट्स को। तो there are people who opt for it. Okay, so coming back to today's session, what we will be talking about, we'll be talking about creating an author page, identifying your correct categories, strategizing your book launch, and the secret to become Amazon bestseller. ये सारी चीजें मैं आज खत्म करूंगी। नेक्स्ट सेशन में आई विल टॉक अबाउट हाउ टू अपलोड योर मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट नहीं है तो उसके ऊपर जाने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये आपको पहले रेडी करना पड़ता है, क्योंकि इधर से सारी चीजें उधर जाएंगी। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सेकंड, मेरे यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं ओपन कर। Anyone planning to write a fiction book by any chance in future? कोई फिक्शन बुक लिखने का प्लान कर रहा है कि नहीं? मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? No, ma'am. तो हाँ ना, ओके, कोई कुछ भूल ही नहीं रहा था। 1 सेकेंड। ओके, सो ये वी गो। सो सबसे पहले बात ये है कि लाइक यू गाइस विल हैव टू इंश्योर दैट you should have an author page other than your website and everything, like in future also अगर आपको multiple books वगैरह खरीदने होते हैं, the problem with Amazon is like when Amazon will go ahead, when people actually buy your book on Amazon doesn't let us know who is buying your book. We can just see the numbers now. But people who must have bought your book in the past, agar aapka author page hai, so when you have another book that is coming up, it becomes easier for Amazon to show it to those people ki bhai there is another book coming up from this author. So that's why it is very important to go ahead and create an author page. So over here, instead of Amazon.in,
there is an Amazon Author Central that we have to create. So I say Amazon Author Central. So basically this is part of Amazon.com. I'm so sorry. So I will not be able to actually show you how it is, but ये देखिए जैसे because I'm already listed, I say this is the author page. I come over here. 1 second, मुझे ये दिखा नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है. लेट मी चेक, यहाँ पे क्लेम करने का ऑप्शन है क्या मुझे? One second. Okay. Okay, so here it is. When you go down to Amazon Author Central, go down to books. तो यहाँ पे समझ लेना, if I have to, I just remember this book. So over here, आपका जो भी book का title है, you will go ahead and search that and search on it over here. मुझे वो नहीं दिखाएगा फिलहाल. Let's see, click on add a book. Okay. You have to go ahead and follow the exact steps. अभी ये जो modern monk है, say for example, this book is Uma Shankar Ji's book. So if I click on this book will be added to my list. Okay. Then ये book जो है वो मेरे नाम के अंदर आ जाएगा, जैसे कि मेरे बाकी के बुक्स है. So this is like Amazon.in में और कितने बुक्स है, फिलहाल ये एक ही दिखा रहा है मुझे. Let me go ahead. Then you will also have to create your author profile. So this is my author profile. This is my photo. See, this author live डाल दें. Exact. Okay. So these are this is my author page, that how people will see actually. Okay. So ये सारी चीजें जो है आपकी updated होनी चाहिए at any given point of time. So the you need to go ahead and search for Amazon Author Central. And ये आप तभी कर सकते हो जब भी आपका book live होता है, not before that. Okay, guys, clear? Then let's talk about आपके आपका जो book है उसका strategic launch and the category research की आपको वो कैसे कर सकते हैं. Now for that, the easiest way to go ahead and choose the categories, because आपको, if you remember the foundation day program में, I said like you can choose 7 keywords, because Amazon lets you go ahead and put 7 keywords. Now most of the people, they will tell you that keyword search is like optional, कि डालना है तो डालो. But I always recommend put your keywords, because these keywords will actually go a long way. Because this will help you to go ahead and rank higher on Amazon. So keyword research आपका day 2 foundation program में cover किया हुआ है. So those are the keywords that has to be there, because यही keywords आप आपके book upload जब भी manuscript करोगे आप तभी भी डालोगे. Plus at the same time आपका जब भी book description होगा आप वो time पे भी उसको add करेंगे. ये 2 तरीके होते हैं. Then the third way that you can, third thing that you have to keep in mind is,
आपका जो कैटेगरी रिसर्च होता है, सो Amazon will let you go ahead and choose only 3 categories. So how do you choose categories? The first basic principle that we follow is we choose categories which are relevant but less competitive. अभी कई बार ऐसे हो जाता है the topic on which you are writing a book, the biggest issue is वो particular category आपको easily नहीं मिलेगा. So you will have to choose a relevant category. So when you are choosing a relevant category, how do you choose? Less competitive and relevant. दोनों होना चाहिए. तो what I always recommend, अगर आपको exact category नहीं मिल रहा है, what you can always opt for is कि आप जो आपके चैप्टर टाइटल्स है वो चैप्टर टाइटल्स के बेसिस पे आप रेलेवेंट कैटेगरीज को चूज करेंगे. ठीक है. नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर स्टेप, ये याद रखना, दिस इज लाइक अ वार्निंग टू एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर. You cannot go ahead and do this research today and upload your book after 15 days. Because यहाँ पे algorithm हर 3-4 घंटे में change होता है. The numbers will fluctuate. You won't even come to know what is happening. I hope I'm making clear. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, टाइप सेटिंग, फॉर्मेटिंग, आपका फ्रंट मैटर, बैक मैटर, सब कुछ रेडी है. एवरी सिंगल थिंग इज रेडी. एंड जस्ट बिफोर यू आर गोइंग टू अपलोड योर मैन्युस्क्रिप्ट, 1 घंटा बैठ जाना, क्योंकि ये 1 घंटे का काम है. ये 10 मिनट में होने वाला काम नहीं है. Now, before I show you how to go ahead and finalize the categories, आप सब लोग एक काम कीजिए. आपका जो बुक का टाइटल है, ओके, एंड मुझे चैप्टर का लिस्ट आप जूम चैट में डाल दीजिए. You need the chapter names and बुक टाइटल. क्योंकि मैं इसे अभी दिखा रही हूँ आपको कि कैसे कौन से कैटेगरीज होंगे. सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अपलोडिंग योर बुक, अगर नंबर्स चेंज नहीं हो रहे जैसे आज है, वैसे ही आप अगर वहां वो टाइम पे भी रहेंगे, यू कैन यूज द सेम कैटेगरीज. बट इफ देर इज अ चेंज, यू कैन नॉट यूज द सेम कैटेगरीज. Okay, so I have got Karun's first, 1 second, part 3. First 9 chapter. So that talks I think about वो 90. थर्ड पार्ट के चैप्टर गए नहीं, मैं दोबारा भेजूँ कॉपी करके. हाँ, वो बहुत बड़ा मैसेज होगा तो एक साथ नहीं जाता है. So it talks about part 1, understanding the 9 to 5 reality and the need for change, the 9 to 5 trap, the hidden cost of staying in the grind, recognizing the need for change and envisioning the new lifestyle, mindset, income, passive income, physical investment, digital income, direct selling from sales, how direct selling outperforms in future to prosperity. Okay, so we go.
यहाँ पे राइट नाउ हमारा जो प्राइमरी मार्केट जो है बुक मार्केट दैट विल बी amazon.in, तो इसलिए मैंने इसको amazon.in पे डाला है एंड यहाँ पे मैं इसे किंडल पे सिलेक्ट कर रही हूँ. सेकेंड, जस्ट गोइंग डाउन टू किंडल. Just so when I come over here, ठीक है, ये मैं किंडल स्टोर में आ गई हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको बेस्ट सेलर्स में डाल रही हूँ. सो बेस्ट सेलर्स से अगेन आई एम कमिंग डाउन टू किंडल स्टोर. So if you come over here, you see top 100 paid and top 100 free. Now, एक बहुत important चीज ये होगी कि since we are pricing a book at 99 rupees, we will not check the free वाला thing. And when you are doing a category research, you will not consider books that show sponsored, यानी उसके ऊपर ads run हो रही है, because that will not reflect the correct numbers. So this is top 100 paid. So I come down to Kindle ebook again, यहाँ पे click करके, और ये top 100 paid. So these are the categories that will show up. So now when I'm looking at, I've just received Karun का list, बाकी किसी का list आया नहीं है मेरे पास. So what I understand is like an entrepreneurial journey, paycheck to prosperity. So करुण, आपको ये लिस्ट में कहाँ पे दिख रहा है जो आपका रिलेटेड चीजें होंगी? चूज दैट. आई होप यू कैन सी. बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ये वाला नहीं कि हाँ? मैंने जो कीवर्ड सर्च किए थे ना उनका, वो आपने बोला था लेस देन 20,000, तो मेरा कोई नहीं आ रहा 20,000 से लेस में. वो कीवर्ड्स अलग है, हम लोग कुछ और ढूंढ रहे हैं. ओके. आप वो बिजनेस एंड कीवर्ड्स, इकोनॉमिक्स ले सकते हाँ हैं की, मैम. फाइनेंस ओके से रिलेटेड भी ले सकते हैं. 1 सेकेंड, हम लोग इसमें जाके चेक करते हैं. सो बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में टॉप 100 पे ही इतने दिखा रहे हैं. सो आई एम चेकिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी. आपके इसमें बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ है? नहीं. ओके, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट चेक करते हैं. 521. लेट्स चेक इकोनॉमिक्स. 854. और कोई कैटेगरी है जो आप यूज कर सकते हैं? चेक. एनी अदर कैटेगरी? रेफरेंस में क्या है देखिए.
you can go into this category, computing, internet and digital media. In digital media and graphic design, ये AI में जाता है, see this. Okay. और ये पकड़ के चलना, आपको करीबन एक 40 ऑर्डर्स लेके आना इसके लिए, इसमें आप इजीली हिट कर पाओगे. See, generally it is, I'll give you a simple calculation, so whatever the number is, see उसके सेल्स जो होते हैं ना, वो उससे 10-20 गुना ज्यादा होते हैं, but the point is not everyone will actually take the trouble to go ahead and put those reviews. So the safer choice is whatever the number of reviews that you can see, simpler, multiply that by 5. Okay, 5 times that number of reviews. So if this is showing 19, यानी ये मैं 20 का पकड़ लूं, तो this will be around 100 pre-orders that you need. So I'm just looking, अभी हमने एक कैटेगरी ढूंढा AI से रिलेटेड. So money making में physical investment, passive income streams. Let's check textbooks में क्या है. Business and finance. Okay. I hope आपने कैटेगरी लिख के रख ली है, करुण. चलो। So इसमें मुझे कोई कैटेगरीज नहीं मिल रहे फिलहाल टेक्स्ट बुक्स में. I was just checking business and finance. So business and finance में भी नहीं आ रहा है कुछ भी. मतलब है, बट आप इजीली नंबर 1 स्पॉट नहीं हिट कर पाओगे. ओके, सो आई एम जस्ट चेकिंग समथिंग एल्स. अभी कुछ और मिल सकता है क्या? कंप्यूटर साइंस में एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें से कुछ यूज होगा क्या. लेट्स चेक दिस. सी सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन है, बट वो रेलेवेंट है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है. वो आपका बुक है, आपको ज्यादा पता होगा. नहीं मैम, वो रेलिवेंट नहीं बैठेगा. Okay. So I'm just going down, checking networking, micro graphics and visualization check कर लेते हैं. Database storage and design check कर लेते हैं. ये भी शायद relevant नहीं होगा. Artificial intelligence ये बहुत ज्यादा है एक्चुअली हिट करने के लिए, तो ये नहीं यूज कर पाएंगे. और बिजनेस एंड फाइनेंस में भी कुछ नहीं मिला मुझे. एंटरप्रेन्योरशिप है, बट सी आप डाल सकते हो, लेकिन लुक एट द नंबर्स. 20,000 कॉपीज ज्यादा है बिकने मैम. बेचने पे, हाँ बहुत ज्यादा है. और लेट्स चेक मैनेजमेंट में कुछ है क्या. नहीं, ये भी ज्यादा ही है.
सेल्स चेक करके देखते हैं। ये है, बट देन स्टिल आपको 1000 कॉपीज बेचने पड़ेंगे। लेट्स चेक बिजनेस डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स देखते हैं। कैटेगरी कितने लेने पड़ते हैं मैम? सिंगल में ही चलना होता है? तीन 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 कैटेगरी। आपने किसी एक कैटेगरी में भी नंबर 1 बेस्ट सेलर अगर हिट कर लिया तो यू कैन हाँ जी। यूज द गोल्डन लोगो। तो एक कैटेगरी तो आपकी तो मैंने ढूंढ के आपको दे दी है, तो आपको वेब ऐसे बैठ के डेवलपमेंट इसको एंड डिजाइन। रिसर्च करना पड़ेगा कि लाइक और 3 कैटेगरीज कौन से होंगी। तो आई एम जस्ट चेकिंग वंस। अंकुश का भी आया है। सेकंड, you can check for like things that talk about shifting your mindset. So mindset falls into social sciences, and this will also talk about साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस और माइंडसेट किस में आ सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी डाल सकते हो आप। सो आई एम चेकिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, साइकोलॉजी 78। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसमें क्या है देखते हैं एजुकेशन में। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चेक करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट। हाँ, ये भी एक कैटेगरी है। सक्सेस चेक कर सकते हैं हम लोग, ये नहीं हिट कर पाएंगे। मोटिवेशनल चेक कर लेते हैं। कुछ और यहाँ पे कुछ है लिंक्ड आपके इसमें, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं। लेट्स सी, नहीं ये भी नहीं। चेक सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ एस्टीम, नहीं। चेक कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स में क्या है देखने को। अरे ये तो मैंने फर्स्ट बुक पढ़ा था लाइफ में। रिव्यूज देखो कितने हैं। सो बेसिकली आपको इसको वैसे पढ़ना ढूंढना पड़ेगा कि ये एक चेक कर सकते हैं, मतलब इफ इट इज relevant, library and information sciences, this is something that you can always explore एक category reference work में। so this is it, let me see अभी और किसका मैसेज आया है मुझे। अच्छा, ये गिनी का आया है, 1 सेकेंड। मैं ये अंकुश का जो PDF फाइल है उसको मैं सेव कर दूंगी। so Ankush says awakening. Ankush, what is actually you are writing on? Ma'am, how to bounce back in a life अच्छा, from rebuild your setbacks. life, हाँ rebuild your life, वो आपका yes बुक yes है ना? हाँ हाँ ओके, हाँ याद आ गया मुझे। So you have 13 chapters. Okay. Okay. So रिबिल्ड योर लाइफ अगर देखेंगे तो ये साइकोलॉजी की तरफ, सोशल साइंसेस की तरफ ज्यादा जाएगा।
आप अगर कोई स्पिरिचुअल टूल्स यूज कर रहे हैं, सो वी कैन एक्सप्लोर दिस पार्ट एज वेल. यू कैन चेक क्रिएशन क्या है, देखते हैं कुछ नया आया है. ये नया आया है कैटेगरी, रिलीजियस क्रिएशन ई बुक्स. ये इसके पहले नहीं था कैटेगरी. So now, let's check social sciences. Okay, now tell me, इसमें से कौन से इसमें आता है? एक तो साइकोलॉजी और चेक कर सकते हैं. अगर फिलोसफी है तो फिलोसफी कर सकते हैं. सोशोलॉजी में क्या है वो भी चेक कर लेते हैं. वाह, सोशोलॉजी में देखो, स्टॉक्स वाला बुक रैंक कर रहा है फर्स्ट पे. Awesome. And this is astrology. And this is a fiction book. Awesome. सोसाइटी एंड कल्चर पे चेक कर लेते हैं. नहीं, ये 78 है, मतलब 80 इंटू 5 कर लो सीधा, करीबन 400 बुक्स. ये भी नया कैटेगरी आया है. सो नया कैटेगरी में अगर डालना है तो डाल दो, चलेगा, वो भी फर्क नहीं पड़ेगा इतना. ज्यादा से ज्यादा दे टेल यू कैन नॉट चूज दिस कैटेगरी. मैं ये चेक कर लेती हूँ, एक मिनट, इसमें कुछ होगा तो. ओके, सो दिस इज अनदर लाइक लॉट ऑफ बिगर कैटेगरी ओवर हियर. दिस टॉक्स अबाउट साइंस, नेचर एंड टेक्नोलॉजी. हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं. इसमें क्या है? नहीं, because I remember you telling me your book can be a reference to everyone, like, even kids as well as like elders, right? मुझे ये ये बोला था हाँ आपने. ये हाँ हाँ हाँ, तो दिस इज इनटू चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स में. एक्चुअली चिल्ड्रन के लिए नहीं जाएगा, बट यंग एडल्ट्स जैसे टीनेजर्स वगैरह है, ये इनके लिए जा सकता है. एंड फॉर दैट it is 40. See, money and jobs में क्या है देखने को. See, this is another category for money, yeah, Karun. You can check, Ankush, you can check family, personal and relationship. 1 second. मैं गिनी का भी ओपन कर रही हूँ. मनी मनी एंड क्या था मैम? वो इधर था, money and jobs. Because 1 what second, मैं chapter is गिनी. there about हाँ, financial empowerment? financial empowerment, money and jobs, या entrepreneurship. Okay. Because और कोई तरीका नहीं है. ओके, सो गिनी एंड अंकुश दोनों का करीबन जो कैटेगरीज होंगे वो सिमिलर होंगे. ओके, सो आई एम जस्ट चेकिंग कि और कुछ ऑप्शंस डाल सकते हैं क्या. ओके, तो ये यहाँ पे कुछ काम का नहीं है. ये थोड़ा सा ना टीडियस काम होता है और इसमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है. बिकॉज इट इज लाइक ईदर इट विल लाइक बिल्ड एवरीथिंग और ब्रेक एवरीथिंग, वैसा सिचुएशन. सो नाउ आई एम जस्ट चेकिंग, हर एक कैटेगरी को चेक करके चेक करना पड़ता है कि ये आपके इसमें रेलेवेंट होता है कि नहीं. सो दिस इज अ साइकोलॉजी वाला थिंग. सी, दिस इज फैमिली एंड रिलेशनशिप. दिस इज 17. सो 17 इंटू 5 कर लेना, मतलब करीब रफली अराउंड 18-90 प्री ऑर्डर्स. दिस इज हेल्दी लिविंग एंड वेलनेस. ये यूज नहीं कर सकते हैं. माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट अगेन यूज नहीं कर सकते हैं. पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ हेल्प नहीं यूज कर सकते. पर पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ हेल्प में बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे. सो इसमें
indigenous mental health and healing ebooks. Okay. So इसमें से आप गिनी एंड अंकुश, यू कैन चूज, लाइक probably सेल्फ एस्टीम चेक कर लेते हैं, नहीं है. Rebuild your life talks about resilience, तो emotions आ सकते हैं, but it is 33,000. I did check Then today. I checked the how Mhm. many. See, if we have 30 to 50 pre-orders and so उसमें कितने reviews के साथ compete कर सकते हैं हम? अगर वो पर्टिकुलर चीज पे अगर समझो 10 से 15 रिव्यूज है, आप compete कर सकते हो. And it's all about, frankly speaking, we didn't expect Maria to hit #1 bestseller with just 7 pre-orders. लेकिन हिट कर लिया उसने. उस कैटेगरी में नहीं होंगे ना ज्यादा वो competition. पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं है क्या कैटेगरी में था, बट वो हो गया वहां पे. तो डेट तो ऑफ द आप बुक, डेट ऑफ द बुक जो बुक शो कर रही है, लेट्स से अगर जिसमें 50 या 70 रिव्यूज है, वो लास्ट बुक अपडेट कब हुई थी, दैट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस. लेट्स से दैट बुक वाज लॉन्च्ड इन 2023, दैट्स नॉट अ रीसेंट बुक, देन doesn't matter, it doesn't make a difference, it will still be the same. So yeah, this is like health, family and personal development. इसमें भी आप कैटेगरीज में चेक कर सकते हो जो भी आपके relevant topics होंगे. So you can just go through each one of it and to see कि जैसे ये personal transformation है, because your book talks about personal transformation. Then your book talks about self-worth or self-esteem. So see, I can't use this. So let's talk about self-management. नहीं है. Then अगर stress management है topic in detail उसमें, तो like you can check that. तो आपको exact same category नहीं मिलेगी, पर आपको less competitive but relevant category उठानी पड़ती है. So हम लोगों ने शायद ये चेक कर लिया है. हाँ, ये चेक कर लिया है. Then I'm going through. ये भी चेक कर लिया. हिस्ट्री हो गया, लॉ हो गया, लिटरेचर. पॉलिटिक्स में तो जाता नहीं है ये बुक, रिलीजन में भी नहीं जाता है. वी कैन चेक साइंसेस में कुछ है क्या. ये शायद डॉक्टर मीर, आपका बुक का टॉपिक क्या है? उनका स्क्रीन फ्रीज हो गया. डॉक्टर मीर, आपकी बुक का टॉपिक क्या है? खुद को अनम्यूट कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो. हेलो, हाँ बोलिए, आपकी बुक का टॉपिक क्या है? मेरी बुक का टॉपिक है मैम प्रोटीन, ई टू एडल्ट लिबिडो डेवलपमेंट. हाँ राइट. सो यू विल हैव टू फाइंड आउट. जैसे ये देखिए, ये मेडिसिन. ओके. सो इसमें दे विल टॉक अबाउट डिफरेंट मेडिसिन. सो दिस इज वन कैटेगरी जो आप चूज कर सकते हो, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन में. देन एक और कैटेगरी देखी थी मैंने जो मुझे अभी याद नहीं है. वन सेकेंड. मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस चेक करते हैं हम लोग. आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स, मेडिसिन एंड स्पेशल टॉपिक्स.
ये इसमें आप हिट कर पाओगे नंबर 1 बेस्ट सेलर। देन आई एम गोइंग बैक, रिसर्च चेक करते हैं। ये सब होम्योपैथिक वगैरह का होगा। मैं अभी टेक्स्ट बुक्स सोशल साइंसेस पे हूँ। आई एम चेकिंग साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी में इफ यू fall into that, ओके ये फॉल नहीं करेगा। गिनी एंड अंकुश, आपका बुक इसमें भी फॉल कर सकता है। टेक्स्ट बुक्स टीचिंग एंड एजुकेशन काउंसलिंग। ओके। पर जब भी आप जिस दिन अपलोड करोगे तो उस दिन आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस दिन का स्टेटस क्या है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी चेकिंग। सो इन इफ द नंबर ऑफ रिव्यूज से 19 है तो इसको इंटू 5 कर लेना, क्योंकि कई बार सेल्स उससे ज्यादा होते हैं पर रिव्यूज लोग डालते नहीं हैं। बट दैट विल गिव यू क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कितने चाहिए। तो अभी मैंने आपको कोई कैटेगरी दिखा है जिसमें अगर समझो 10 रिव्यूज है तो ये पकड़ के चलना कि आपको 50 प्री ऑर्डर्स चाहिए। अगर वहां पे 15 रिव्यूज है, इंटू 5 करके 75 प्री ऑर्डर्स करना है। लेकिन आपको उतने बेंचमार्क आपको क्लियरली हिट करना है, बिकॉज इफ यू आर नॉट हिटिंग दैट तो जिस दिन आपका बुक जब भी लाइव होगा तभी वो टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब यू माइट राइट अ बुक, लाइक देर आर पीपल इन माई कम्युनिटी जिन्होंने बुक तो लिखी है लेकिन वो लोगों ने कोई प्री ऑर्डर के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लिए, किसी से बात नहीं की, कहाँ पे डाला नहीं मैसेज वगैरह, एंड बिकॉज ऑफ विच नो वन एक्चुअली बॉट देयर बुक्स। सो देयर बुक्स आर लाइव ऑन Amazon, बट वो प्री ऑर्डर नहीं हो रहे, मतलब वो बेस्ट सेलर हिट नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे भी होते हैं। एंड डू नॉट टेक अ वर्बल कमिटमेंट फ्रॉम एनीवन, जस्ट सी टू इट कि आप जो है उनसे पैसे ले लेना, वो कर लेंगे, वो खरीद लेंगे, तो वो होता नहीं है, वो कोई नहीं खरीद करता है। Now the next thing that you will also have to take care of is, again I'm going down to amazon.in। मैं एक्चुअली उसी पे हूँ लेकिन फिर भी मैं करने वाली हूँ ऐसे। सो नाउ आई कम डाउन ओवर हियर एंड आई क्लिक ऑन दिस न्यू रिलीजेस। सो न्यू रिलीजेस में मैं अभी जाऊंगी बुक्स पे। सो अभी मैं बुक्स पे आने के बाद में यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है न्यू रिलीजेस एंड प्री ऑर्डर्स। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। सो नाउ अभी आपके पास आपकी कैटेगरी रेडी है, तो बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी वील हैव टू फाइनलाइज जो डेट आपने चूज किया है वो डेट में कोई और बड़े ऑथर का बुक आ रहा है कि नहीं। तो दी आइडियल थिंग इज कि समझ लेना, अगर ऐसे सिचुएशन है कि जहाँ पे वो ऑथर का कोई बड़ा बुक आ रहा है, तो द बेस्ट थिंग इज लाइक आप आपका डेट को प्रीपोन कर लो या एक हफ्ते से पोस्टपोन कर लो। सो दिस गिव्स यू अ क्लियर आइडिया ऑफ दैट। सो समझ ले। एंड मेनी टाइम्स ऐसे भी होता है कि जो कैटेगरी आपने अभी देखी वो कैटेगरी ई बुक्स की है, बुक्स के लिए कैटेगरी अलग होती है। ओके, so now I am coming down to say we chose textbooks and guides। तो मैंने टेक्स्ट बुक एंड गाइड्स में जाके मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे मेरा रेफरेंस पे मैं गई। ठीक है, या फिर मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स एंड गाइड्स पे डाला। नाउ ऑन माय टॉप कॉर्नर राइट हैंड साइड आई सी द सॉर्ट बाय बेस्ट सेलिंग, तो उसको मुझे डाल के पब्लिकेशन डेट पे डालना है।
So when I click on publication date, मुझे आ रहा है 30th अप्रैल। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक्स में की कैटेगरी आपने चूज किया है, तो आपका ये डेट के आसपास यही कैटेगरी में अगर डालने वाले हो, तो अगर ये कोई बड़ा ऑथर है तो नेवर गो फॉर इट। सो सी 23rd अप्रैल इज नॉट अ गुड डेट बिकॉज सोनाली बेंद्रे का एक बुक आ रहा है। देन आई एम स्क्रोलिंग डाउन, ये पहले से आ चुका, रिलीज हो चुका है। सो द ओनली थिंग दैट आई वुड से इज 23rd अप्रैल है, तो अगर आपने सोचा है कि 25th अप्रैल को मेरा बुक लाइव होगा और यही कैटेगरी में आप डालने वाले हो, सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज इंश्योर कि आप थोड़ा सा वो डेट को शिफ्ट कर लो, प्रॉब्ली बाय 30th, if you have to upload your book into this particular category. Then let's look at जैसे करुण has into computer and everything, तो वो कैटेगरी कौन सी थी मुझे ढूंढनी पड़ेगी अभी। करुण आपको कौन सी कैटेगरी दी थी मैंने? वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन। वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन, लेकिन उसकी सब मेन कैटेगरी कौन सी थी? सो रेफरेंस में है क्या, देखो मुझे। एक मिनट, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में कोई नया आ रहा है क्या, चेक कर रही हूँ मैं। अगर आपने समझो इकोनॉमिक्स में डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो 30th अप्रैल को रमन महादेवन का बुक आ रहा है, टाटा बॉय, दिस इज, ये दो बड़े बुक्स आ रहे हैं अगर आपने इकोनॉमिक्स में डाला तो 30 तारीख को। बट मैंने वो किस में डाला वो मुझे याद नहीं आ रहा है। वेब डेवलपमेंट, यार मैम कंप्यूटर्स की कैटेगरी थी, मेन कैटेगरी थी। हाँ पर अभी यहाँ पे कैटेगरी नहीं दिखा रहे ना, वही तो मैं ढूंढ रही। इंजीनियरिंग चेक करके देखते हैं, ये बायो इंजीनियरिंग है, ये नहीं है वो कैटेगरी। लेट्स चेक हेल्थ, फैमिली एंड पर्सनल डेवलपमेंट। सो आपने जो कैटेगरी वहां पे चूज किया होगा ना, वो कैटेगरी में आपको जाके चेक करना है। जैसे अभी मैंने सेल्फ हेल्प में चेक किया है, तो सेल्फ हेल्प में 30th में दिखा रहा है, 30th अप्रैल। सो मेनी टाइम्स जैसे अभी ये 29th अप्रैल को रिलीज हो रहा है, बट दिस बुक ये किंडल में ऑलरेडी इतने सारे रिव्यूज आ चुके हैं। सो दैट मीन्स मैं 29th अप्रैल को ये कैटेगरी में सेल्फ हेल्प में ये बुक को नहीं डालूंगी। जैसे अभी लेट्स चेक इमोशंस, इमोशंस में कुछ रिलीज नहीं हो रहा है फिलहाल। अरे 1 सेकंड, स्क्रीन गायब हो गया। नाउ अभी कंप्यूटर्स का कौन सा कैटेगरी है मुझे वो याद नहीं आ रहा है। इसमें डाल के देखते हैं। मुझे वो कैटेगरी याद नहीं आ रही है, मैंने कौन सा आपको दिया था कैटेगरी ढूंढ के, तो यू विल आल्सो हैव टू सर्च। हम्म, जनरली आप वहां पे जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हो एंड देन यू नो व्हेन यू आर पुटिंग इट आउट हियर, दैट इज द टाइम यहाँ पे वो कैटेगरीज रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये कैटेगरी में से आपको यू नो
वो बुक्स रिलीज होने वाले हैं। अगर समझो कि आपने जो कैटेगरी चूज की है एंड दैट कैटेगरी इज नॉट शोइंग आउट हियर, दैट मीन्स वो कैटेगरी में कोई बुक रिलीज नहीं हो रही है। एंड दूसरा उसका एक और एस्पेक्ट ये भी है कि ई बुक्स की जो कैटेगरीज होती है और बुक्स की जो कैटेगरी होती है वो कंप्लीटली अलग होती है। वो सिमिलर हो सकती है बट सेम कभी नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारा फर्क आता है उसमें। सो नाउ वी हैव थोड़ा सा और टाइम बचा है, सो लेट मी शो यू समथिंग एल्स एज वेल। 1 सेकेंड, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा शायद। बिकॉज मेरे पास उसका लिंक नहीं है, तो आई जस्ट लॉग इन एंड चीज पे देखनी। आज बोर हो गए लगता है सब लोग। हाँ, आज बोर हो गए क्या सब लोग कैटेगरी ढूंढने के चक्कर में? जानकारी मिल रही है। नहीं, आज एकदम शांति शांति में बैठे हैं सब लोग। शांति में नहीं, मैंने एक टैब और खोल रखा, मैं उसको भी ढूंढ रहा हूँ साथ साथ जब तक। अच्छा, अभी ढूंढ रहे हो क्या? लेकिन अभी ढूंढ के कोई फायदा नहीं है उसका। नहीं, मैं एक्चुअल में क्या होगा ना, थोड़ा सा सीखने को मिल जाएगा तो उस दिन इतनी परेशानी नहीं आएगी। अभी तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। ओके, तो आज है ना थोड़ा सा टाइम है, सो मैं ना आपको कुछ और भी दिखा देती हूँ। बस एक सेकंड में, कहाँ पे लिंक है मुझे याद ढूंढना पड़ेगा। हमारा फ्रंट मैटर एंड बैक मैटर कंप्लीट हो चुका है ना? जैसे हम कैटेगरीज जो सर्च आउट कर रहे थे तो उसमें मतलब ऊपर 1 2 3 4 नंबरिंग दे रखी थी। तो उसमें नीचे जब हम रिव्यूज पे जा रहे हैं, मतलब जैसे किसी में मान लो 20 रिव्यूज है, तो आप वो उसी को बोल रहे हो ना कि 20 रिव्यूज है तो 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो तकरीबन मेरे को 100 सेल्स चाहिए होगा स्टार्टिंग में। करेक्ट। तो किसी किसी में मैंने जो सर्चिंग करी तो उसमें ऐसा भी देखा कि जैसे पहले वाले में जो बेस्ट सेलर 1 दिखा रखा है उसमें उसमें कम रिव्यूज हैं, फिर दूसरे में ज्यादा हैं, फिर तीसरे में कम है। तो उससे नहीं मतलब समझा। मतलब 1 नंबर पे 19 रिव्यूज है, जो 1 नंबर पे बुक दिखा रखी है। हाँ, और उसके बाद उसके साइड में जो दूसरी बुक दिखा रखी है सेकंड नंबर, उस पे 261 है, फिर अचानक वापस 8 9 हो जा रही है। वो कैसे होता है मैं बताती हूँ। अगर समझो किसी ने कोई एड रन किया होगा या ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए, तो वो रैंकिंग चेंज होता है। आपका बुक लाइव होने के बाद है ना, लिटरली एवरी सिंगल आवर यू शुड चेक Amazon। क्योंकि कभी कभी वो ना मैंने तो देखा कि नीलकंठ ने अपना बुक चेक नहीं किया, मारिया ने अपना बुक चेक नहीं किया, उमा शंकर जी ने अपना बुक चेक नहीं किया, तो उनका जो नंबर 1 स्पॉट पे आया ये उनको पता ही नहीं था। And the moment it hits number 1 spot in any category out of the 3 categories, always take a screenshot. That is an evidence that you have कि हम लोगों ने ऐसे ही वो नंबर 1 bestseller. Amazon doesn't go ahead and give you that bestseller वाला logo, but the that acts as an evidence कि ये यहाँ पे हम लोग गए थे, इस हिट किया, इसीलिए हम लोग ये bestseller का logo डाल रहे हैं. But on an hourly basis, you have to keep on checking that. ठीक है? Now what I'm going to show you today is like about how to price your ebook.
नाउ जब भी हम लोग Amazon पे जब भी हमारा ई बुक अपलोड करेंगे, तो आपका जो बेस प्राइस होता है, मतलब बेस कंट्री में जो आपका प्राइस होता है, जैसे हमारे केस में फिलहाल हम लोग इंडिया में डाल रहे हैं, तो based on that, Amazon will actually, not actually, automatically calculate the price and it will give you कि आप ये रेंज से ये रेंज तक आप उसको कैलकुलेट यूज कर सकते हो, मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों आपको बता देता है. सो यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू पुट. नाउ if you have lot of buyers from India, I would always recommend go for Amazon.in, then it becomes easier for you to hit that number one spot. अगर आपके बायर्स बहुत ज्यादा है, जैसे आई हैड अ पर्सन हु सेड लाइक मेरे बाहर बहुत सारे बायर्स है, दे आर इन दुबई एंड यूएस एंड कनाडा, दे आर गोइंग टू बाय, and initially he said like they are going to buy and then something went wrong and then these people suddenly backed off, they didn't buy it. तो ये ऐसे केसेस में भी होता है. तो the safe bet is like, since we are staying in India, it becomes easier for you to hit a bestseller, provided you have lot of known people that who can actually buy your book. Okay, so that's the whole idea of doing that. Now let me share my screen. So this is Amazon का KDP का page है. This talks about the ebook price requirements. Now जब भी आप आपका ईबुक को टाइप सेट और फॉर्मेट करते हो Kindle Create में, तो when you are exporting that data into a EPUB and a KPF format, तो वो टाइम पे आपका जो फाइल साइज होता है वो फाइल साइज के बेसिस पे आपका प्राइस पॉइंट डिसाइड होता है. Now when you are looking at the data in your computer, you might say अरे 1 MB का फाइल है या 2 MB का फाइल है, बट जब ये वो Kindle पे अपलोड होती है, मतलब KDP Amazon KDP पे जब ये एक्चुअली अपलोड होती है, तभी वो फाइल साइज डिफर करती है. एक तो कम तो भी होगी या ज्यादा तो भी होगी. आपको जब आप वही Kindle के, मतलब Kindle का जब भी हम लोग Google Docs में लिखते हैं, so when I wrote my book it was showing around 170-80 pages, but जब भी मैंने Kindle पे अपलोड किया है it is showing just 140 pages. That also happens because Kindle का एक अपना इंटरनल फॉर्मूला होता है या फॉर्मेट होता है, तो वो हिसाब से वो उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है. And let me tell you one thing again, there is no need for you to go ahead and put page numbers. कि ईबुक में कोई पेज नंबर्स नहीं होता है, बिकॉज every time there is a change in the type of device that is in which it is used, the the page numbers वो गड़बड़ कर देगा, and that is the only reason ebook में generally page numbers नहीं होते हैं. So let's have a look at this particular sheet. It talks about the ebook price list and the requirements. तो अगर आप देखेंगे तो it talks about Amazon.com पे क्या requirements है, Amazon.in पे क्या है, कैलिफोर्निया में क्या है, ये this is Brazil I guess, and this is UK, this is all of these out here, Japan and Mexico and everything. So all of these countries का यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है. So what we are going to focus on is this. One second, इसको थोड़ा सा enlarge कर लेते हैं. I hope अभी दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा ना अभी clearly? Yes, ma'am, it's clear. So now, in actually, we will be talking about this price point in detail in the next session. Before we go ahead and upload a manuscript on Kindle Create, but नहीं Kindle KDP. But उसके पहले, you will have to understand कि Amazon gives you two types of royalty. One is a 35% royalty and one is a 70% royalty. So अगर आप 35% royalty डालते हो, so you are not giving Amazon the exclusive right to your book. तो currently अभी मैंने क्या किया है, मेरे पहले जो 2 books थे वो मैंने 70% royalty पे डाला था. So what that means is 70% royalty in the first 90 days. For the first 90 days after the book goes live, आप ये book जो है in a digital format you cannot circulate it anywhere. But
you can circulate a physical copy. That is the rule. And you cannot break those conditions. So मैंने थर्ड बुक इसलिए लिखा बिकॉज मुझे कुछ टेस्टिंग करना है, तो वो टेस्टिंग के लिए आई सेड लाइक लेट मी गो हेड एंड पुट इट एज अ 35% रॉयल्टी. तो हम लोगों का अभी बैक एंड में वो टेस्टिंग चल रहा है. So what we are focusing on multiple things that we can introduce into it. तो उसके ऊपर वी आर वर्किंग बिकॉज हम लोग किसी और के बुक के ऊपर टेस्टिंग नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने मेरा थर्ड बुक पहले यहाँ पे डाल दिया एंड देन वी आर डूइंग द टेस्टिंग एट द बैक एंड. सो नाउ इट इज अप टू यू कि आपको कौन सा रॉयल्टी चाहिए. बट 90% ऑफ द बुक्स यू विल गेट ऑन Amazon. एंड कहीं पे भी बुक जब भी खरीदना होता है, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स बट पीपल विल ऑलवेज गो डाउन टू Amazon because Amazon is a household name. तो now the question is कि आपको रॉयल्टी कौन सा चूज करना है. I would always recommend go for a 70% रॉयल्टी. मतलब आप 99 रुपीज का अगर एक बुक रखते हो तो वो उसमें आपको करीबन 64 रुपीज के आसपास आपको रॉयल्टी मिल. So if you see out here, it has given you this option कि 35% रॉयल्टी अगर आप चूज करते हो, अगर आपका फाइल साइज इज लेस देन 3 MB, तो मिनिमम प्राइस आप 49 रख सकते हो, मैक्सिमम आप 11,000 रख सकते हो. 3 MB टू 10 MB होगा तो 69 टू 11,000 रुपीज. 10 MB प्लस है तो 99 टू 11,000. लेकिन अगर आप 70% रॉयल्टी चूज करते हो तो आप सीधा 99 रुपीज ऑप्ट कर सकते हो. ओके, एनीथिंग बिटवीन 99 टू 449 यानी 450 रुपया. नाउ what happens is, I'll tell you, every single time जब भी आप any customer, any buyer is going out there and actually placing an order on Amazon, so you might say कि यार इन लोग इतना पैसा क्यों काट रहे हैं. बट द पॉइंट इज कि ये जो डिलीवरी कॉस्ट जो होता है ना, मतलब हम लोग यहाँ पे उनको पैसे देते हैं, फिर वो प्रोसेस करेंगे और फिर वो उनके सर्वर से वो ईमेल उधर डिलीवर करेंगे. दैट उतना फाइल साइज जब डिलीवर करते हैं तो वो जो कॉस्ट होता है ना, दे आर डिडक्टिंग दैट कॉस्ट बिकॉज Amazon वालों को भी अपना घर चलाना है. सो वो इसलिए वो 35 रुपीज हमसे काटते हैं. ठीक है. So that's how you choose your pricing strategy. Okay. So और कुछ बचा है कि मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि अगर कुछ बचा है तो मैं खत्म कर लेती हूँ. इन द मीनवाइल आपके कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लेना ताकि आई कैन आंसर देम. मैम वन कुछ और सजेशन, बोलिए. ऑडियो बुक के बारे में भी जरा कुछ बता दो मैम. We are working on the audiobook wala thing. So once that is done, ये किसने पूछा था मुझे by the way? मैम मैंने पूछा. अंकुश. अच्छा, ये नहीं, मैं वो स्क्रीन पे नहीं थी. So we are working on that. You know, the problem with audiobook currently is like, you know, Amazon doesn't let Indian authors create their own audiobook. So मुझे ये टेस्टिंग करना था, तो इसके लिए मैंने मेरी पहले अभी ये थर्ड बुक लिखी. बट देन वी रीच आउट टू पीपल फ्रॉम Fiverr एंड एवरीवन. तो एक you know, they are asking for around 50 to 60,000 rupees. And the biggest problem with audiobook is Amazon doesn't let you use AI generated book, like the AI voices. समझा कि नहीं? हाँ Screen यस froze. मैम, यस यस. हाँ, तो ये इश्यूज आ रहे हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन इट टू बाईपास इट. एंड देन दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है, मैं बताती हूँ. व्हेन योर बुक इज अ नॉन फिक्शन बुक, जनरली पीपल डोंट प्रेफर टू लिसन टू इट इजीली. तो उसको आपको जैसे मैं मेरे एंड से ही बताती हूँ. मैं माय फर्स्ट बुक इज अ नॉन फिक्शन बुक. तो अगर आपको मैंने एक नॉन फिक्शन बुक जो बहुत सारे लोगों के लिए काफी बोरिंग होती है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे सेकंड बुक ऑनवर्ड्स में नॉन फिक्शन बुक को मैंने लिखना चालू किया विद अ मिक्स ऑफ फिक्शन.
So if you have bought my book, so what you must have read is like it's a mix of fiction and non-fiction. Creative fiction, मैं creative हाँ non-fiction. करेक्ट. तो बिकॉज मेरा जो वो इंस्पिरेशन था, इट वाज आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक दिस बाय रॉबिन शर्मा, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी. एंड देन एट दिस वो खत्म करके मैंने और उसके बाद 2-3 बुक्स पढ़ी. तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग सेम मैसेज जो नॉन फिक्शन में हम लोग किसी को बता रहे हैं, वो सेम मैसेज हम लोग एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में दे सकते हैं, ताकि वो चीज गले के नीचे उतरे भी. वरना लोग क्या है, बुक आधी छोड़ देते हैं. एंड देन जो इफ इट इज अ मिक्स ऑफ नॉन फिक्शन ऑफ एंड फिक्शन, तो वो ऑडियो बुक सुनने में काफी अच्छी होती है. बिकॉज मुझे वो ऑथर का नाम याद नहीं है. देयर इज अ बुक कॉल्ड यू कैन हील योरसेल्फ and the power of subconscious mind. So these books are totally non-fiction books, but the problem is अगर आप इसका ऑडियो बुक सुनने की कोशिश करो तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है, बिकॉज इट बिकम्स टोटली मोनोटोनस. क्योंकि मैंने ये अलग अलग फॉर्मेट्स में इसको टेस्ट किए हुए. एंड ऑडियो बुक का दूसरा एक और इशू ये भी होता है कि उसका सिनॉप्सिस क्रिएट करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू नॉन फिक्शन बुक. So what we are working on right now is, creating some set of AI prompts and everything, ताकि आपका उसका script ready हो जाए, and then you can put it as an audio book. So we are doing the testing at the back end. Because हर चीज जो आपके सामने आता है, जैसे we launched a book marketing वाला thing last month. तो ये बुक मार्केटिंग वाला जो चीज था उसको हम लोग ने टेस्ट किया हुआ था. एंड वो टेस्ट करने के बाद में हम लोग ने प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम डाल दिए. क्योंकि मेनी ऑथर्स बुक लिख लिया, बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि बुक सेल्स नहीं होता है. बट बुक सेल्स ऐसे नहीं होता है. यू विल हैव टू ड्राइव दैट बुक सेल्स. देन द अदर थिंग दैट ऑल्सो मैटर्स इज कि हम लोग इतने वेल नोन ऑथर्स नहीं है, तो लोगों को कई बार ये भी प्रॉब्लम होता है ना कि ये टॉपिक पे बुक है, यही लोगों को पता नहीं होता है. तो वो अवेयरनेस भी क्रिएट करनी पड़ती है. ये बहुत सारी चीजें. सो एवरी single time I'm rolling out on something new to you guys, so that time it is tried and tested at the back end and then it is given to you. ठीक है. तो इसलिए ऑडियो बुक भी मोस्ट लाइकली if not May end, it will be launched by June, because we are testing it currently कि क्या feasible है, क्या feasible नहीं है. क्योंकि not everyone might have that 50,000-60,000 rupees to spend. Yes. तो because अगर वो देखो, I know there is, मैंने किसी का तो भी एक वर्कशॉप ज्वाइन किया था, who clearly said sell your audio books and I can help you do that. And when I asked him, so he said my program cost is 1.5 lakhs rupees. एंड मैंने उसको डीएम किया, मतलब हम लोग जूम कॉल पे थे, मतलब वो वेबिनार में मैंने उनको पूछा कि आपका 1.5 लाख फीस है, लेकिन जब भी आप मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाएंगे, लेकिन इसका जो रिकॉर्डिंग वगैरह जो है करके लेना है, उसका कॉस्ट का क्या है, तो वो एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा. मतलब मेरा कॉस्टिंग की करीब 2-2.5 लाख जाएगा. तो मैं वो बुक बिकेगा कब, और फिर मैं प्रॉफिट कभी कमाऊंगी. एंड पीपल लाइक फूल्स वर बाइंग हिज प्रोग्राम. ठीक है. तो यू हैव टू बी वेरी रैशनल. 1 सेकेंड. यू हैव टू बी वेरी रैशनल, लाइक जब भी मैं कोई प्रोडक्ट में मेरे एंड से जब भी आपको दे रही हूँ, अभी इफ यू नोटिस, अदर देन यू पेइंग फॉर माय प्रोग्राम, आपने कोई पे टूल्स नहीं खरीदे. अगर आपने खरीदे हैं तो आपके पर्सनल चॉइस से खरीदे, पर अदरवाइज मैंने कहीं पे रेकमेंड नहीं किया आपको. तो इसीलिए वी आर टेस्टिंग एवरी सिंगल ऑप्शन अवेलेबल कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हम लोग क्या चीजों को बाईपास कर सकते हैं. हाउ इज इट दैट वी कैन डू. So once we are thorough with it, we will roll it out to you guys. Okay, ma'am. ठीक है.
एंड प्लस व्हाट वील आल्सो बी डूइंग इनटू द ऑडियो बुक्स, एज आई सेड, हम लोग उसमें वो एआई प्रॉम्प्ट्स वगैरह सब कुछ डाल के देंगे, तो जो स्क्रिप्ट वगैरह रेडी करनी है वो सब रेडी हो जाएगी आपकी इंस्टेंटली। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी क्विकर एंड फास्टर फॉर यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस पूछ लेना। भाई पूछो सवाल। आज क्या कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। मैम जो बेस्ट सेलर वाला टैग होता है वो मतलब वो टैग हम लगाते खुद ही हैं बाद में, मतलब बस वो हाँ, लेने खुद ही के लिए कि लगेंगे। जब बाद में खुद ही लगा। इसीलिए मैंने आपको बोला, आपका बुक लाइव होने के बाद हर 1 घंटे में आप उसको चेक कर लो। एंड अगर वो नंबर 1 स्पॉट पे आता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, और वो स्क्रीनशॉट निकाल के अपने आप को ईमेल कर लेना एज एन एविडेंस। एंड लोगो आपको आप ग्रुप में डाल डाल देंगे तो कोई ना कोई आपको टीम मेंबर भी भेज देगा लोगो। सो यू कैन ऑलवेज पुट दैट लोगो। आपका जो टाइटल कवर जो है उसको एडजस्ट करके उसमें लोगो डाल देना, लेकिन एक प्रिकॉशन लेना कि ज्यादा चेंजेस नहीं करना। बिकॉज मेरे साथ ये चीज हुआ, एंड आई टेल यू क्या हुआ मेरे साथ में। मेरे फर्स्ट बुक को 70+ रिव्यूज थे। ओके, बट मैंने क्या किया, मेरा बुक कवर ओरिजिनली कोई और डिजाइन पे था, मैंने उसको चेंज किया, वो बेस्ट सेलर हिट कर लिया। ओके, तो मैंने उसको क्या किया, पहले फिर वो गोल्डन बैच डाल दिया, एंड देन सडनली मुझे 15-20 दिन के बाद लगा अरे यार ये बुक कवर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई वांट टू चेंज इट। मैंने वापस उसको चेंज किया। ओके, तो वो चक्कर में क्या हो गया, मेरे जितने रिव्यूज थे ना, वो पता नहीं है अमेजोन को ऐसा लगा कि यार कोई स्पैम बिम है या बॉट वगैरह कुछ कर रहा है, तो रिव्यूज गायब हो गए मेरे सारे के सारे। तो अभी कुछ 6-7 रिव्यूज दिख रहे हैं। तो एक ही झटके में करके बाजू में हट जाना, बाद में उसको हाथ नहीं लगाना बिल्कुल। एंड एक और बात अभी बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि दे पुट द बुक, देन दे सी देयर इज नो सेल्स हैपनिंग, एंड उसके बाद में सडनली वो लोग अपना बुक को ना डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड ना। वन सेकेंड, मैं ना आपको एक बात बता दूं। ओके, सो आई वॉज जस्ट चेकिंग समथिंग। इकिगाई वॉज एक्चुअली पब्लिश्ड इन March 2016। ठीक है, लेकिन उसने मोमेंटम गेन किया December 2016 में। सो ऑलमोस्ट 8-9 महीने के बाद में। सो यू नेवर नो कि कौन सा बुक कभी मोमेंटम गेन करेगा। बिकॉज द ब्यूटी ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स इज लाइक दीज आर टाइमलेस। कि यार ये कोई भी मतलब जो प्रॉब्लम्स अभी है वो सेम प्रॉब्लम्स 5 साल के बाद भी होंगे, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है। सो नेवर एवर डीएक्टिवेटेड। हाँ, लो क्वालिटी कंटेंट बुक है तो भाई हटा दो, चलेगा। बिकॉज ज्यादा लो क्वालिटी कंटेंट बुक भी रहेंगे तो भी इशू आता है, क्योंकि Amazon रन्स इट्स ओन चेक। ठीक है, रिलीज होने के मतलब बाद में भी। वो नहीं रिली, मैं आपका मतलब कोई आई हैड अ पर्सन इन माय कम्युनिटी, एंड शी देयर आर 2 people इन फैक्ट, अभी भी है कम्युनिटी में, पर टेलीग्राम पे है कि नहीं मुझे पता नहीं है। सो व्हाट दे डिड इज लाइक बिफोर ज्वाइनिंग दे हैड लाइक कलरिंग बुक्स, वो डायरीज बनाया, प्लानर्स बनाया, मतलब वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं ना कि ये ऐसे करो तो पैसे कमा सकते हो। मतलब मैं भी, मुझे भी वीडियोस आते हैं कैनवा पे टेम्पलेट्स बनाओ बेचो। पर कैनवा पे टेम्पलेट्स बना के बेचना इतना इजी है क्या? उसके लिए भी फनल क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके लिए भी एड्स रन करने पड़ते हैं। तो ये कोई नहीं बोलता, ये प्रॉब्लम दिक्कत है। या एक मैंने इतना कमाया, मैंने उतना कमाया, अरे यार नहीं होता है ऐसा है। सो ये सारी चीजें आती है उसमें, तो डीएक्टिवेट मत करना। जस्ट ये करते रहना कि लाइक यू डू योर बुक मार्केटिंग वाला थिंग, उसको अवेयरनेस क्रिएट करते रहना पड़ता है। बिकॉज सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, probably Ikigai is not the best book.
Atomic Habits is not the best book. It all depends upon the marketing. ये याद रखना. तो आप मार्केट कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. अभी करंट स्टेट में मुझे पता है कि मेरा थर्ड बुक बहुत अच्छा है, मुझे पता है. बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है. तो मुझे पता है इफ आई गो हेड एंड डू दैट, मैं उसको पुश कर पाऊंगी. बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज मेरा गोल इसको पुश करना नहीं था. आई वांट टू डू अ हिंदी एडिशन. सो आई हैव गॉट पीपल हु हैव रिक्वेस्टेड मी दैट दे वांट टू डू translations. So but since we don't know the other languages, तो हम लोग उसका टेस्टिंग नहीं करेंगे. Even my first book and second book, I had many people who told me that हिंदी में रहेगा तो बेटर होगा, we can buy the book. बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब ये बुक लिखती हूँ तो मैं सोचती हूँ इंग्लिश में हूँ, तो वो हिंदी मेरे को फटक से आता नहीं है. आई वॉज इन a previous batch, March wala batch mein, and there is this guy who is actually writing a book, and he suddenly used a word called chayan, and I was like, नॉर्मल हिंदी बोलेंगे तो समझ में आएगा, चयन का मतलब क्या है मुझे पता नहीं है. Selection. नहीं, मुझे पता नहीं है ना. अभी एक तो प्रॉब्लम ये था दैट गाय वाज यूजिंग अ टिपिकल बिहारी एक्सेंट, तो मुझे वो एक्सेंट की वजह से, एंड ऊपर से ही वाज डूइंग दिस, ही इज कमिंग लाइक दिस, ही इज कमिंग लाइक दैट, तो एक वर्ड सुनाई देता है, दूसरा वर्ड सुनाई नहीं दे रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया. तो मैंने उनको बोला नॉर्मल हिंदी में बोलिए जो मुझे समझ में आया. So now he is writing a book in Hindi and then he wants to translate it in English. But there are people who have written a book in English. They want to translate it in Telugu, and there are certain people who want to do it in Hindi. So we are working on multiple things currently. तो जैसे जैसे once we are like, हमको वो success दिख रहा है, the output is good, we'll roll it out to you guys. That's the whole idea. Sonali, for some people, they upload it on Amazon and then they say, this is my link for pre-order. I think before the release, some people do like that. How does that work? So हम लोग जब भी फ्राइडे मिलेंगे, so I'll show you how to create that pre-order वाला link. अच्छा. But I'll tell you, do not do that. Okay. Do not do that. The reason is उसमें क्या होता है मालूम है, जो लास्ट मिनट कैटेगरी अपलोड करने की वजह से जो आपको अपर हैंड मिलता है ना, नंबर 1 स्पॉट करने के लिए, हिट करने के लिए, वो नहीं मिलता है. Okay, so we are going to upload, like, let's say for third, like I want to have my book. If you want to upload, if you want your book to be live on 3rd, see to it that you are uploading by the 27th, 28th, 4-5 दिन पहले, because Amazon takes 72 hours to be very precise to make your book live. Lekin if Amazon finds there is some problem with the content that you have put in, they will send you an email. So that's the only reason I always suggest, see to it that your manuscript is uploaded 5 to 7 days earlier. So we have a control on the date when it goes live. Yeah. The categories, so when we are uploading, that time only we are choosing, right? 5-7 तो मैं days. जब भी तो मैं जब भी आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगी, so I'll show you how things work. So that will be covered in the next session. So don't worry. Creating the account also. Creating the account. The KDP account. Yeah. Everything. Indian, yes. Okay. Everything. Can you just I've seen in that list Excel, there were 15 people who have not filled in when their book is coming, and even those who have filled in, I think maybe they have different batches. They have more friendly with their own batch. मुझे तो कोई रिप्लाई नहीं मिला, मैंने टेलीग्राम में भी मैसेजेस लिखे थे. Because many people, उनका book half the way written है. 2 महीने से रेडी है, पर अपलोड नहीं किया है. No, I wrote down that if somebody wants that I should buy, they can share the link, because I don't know, some of them are done with it. I can see the thing is like Ankush bought my book, इसलिए मैंने पूछा उनको कि आपने खरीदा क्या,
तो what we do is like when we जैसे निवेदिता bought my book, Okay. okay, bought my book, but the thing is for me to buy their books, the book has to be online. So Yeah. when Nivedita bought my book, I bought her book. Hmm. So for me to buy Ankush books, his book has to go out there. I will not reciprocate. Definitely, even I will be reciprocating No, that. no, that's not what I'm saying. What I'm saying is that अभी कुछ लोग के live book शायद I think is live. Some of them are wanting, and I wrote down if whoever is wanting just share their link. I'll buy. I can buy now. But मुझे लगता है request तो 3-4 दिन से आधी 2 दिन से चल रही है, but nobody. नहीं, the thing is Telegram लोग check नहीं करते. हाँ, that is down notification हाँ. नहीं आती हो, notification नहीं आती. Correct. लोग टेलीग्राम चेक नहीं करते, जो जब भी चेक करेंगे तभी रिस्पॉन्ड करेंगे. और ये सारे जितने भी लोग हैं वो सारे अलग अलग बैचेस से हैं. हाँ, I understand that. Like you are from one batch, so you would know each other better. So अभी हुआ क्या है, like when more number of people are there, so what we generally do is like once or twice in a month we see to it कि हम लोग एक साथ मिलते हैं and we review each other's books, we buy each other's books kind of. But for that we need more number of people जिनके books live होने चाहिए. अगर लाइव नहीं होंगे तो ये एक्टिविटी करने का कोई मतलब नहीं है. एंड लोग ये कर रहे हैं. आई नो देयर इज अ पर्सन लाइक देयर इज अ गाय अशोक वर्मा करके, हिज बुक इज रेडी. मतलब आई थिंक उन्होंने मुझे नवंबर या दिसंबर में ज्वाइन किया है. ही इज डूइंग सम रिसर्च वर्क, तो उनका लास्ट चैप्टर बचा है एंड दैट्स व्हाट ही इज वर्किंग ऑन फॉर द पास्ट 5 months. Another person, I think Naveen Kumar karke, his book is ready for 2 months. It's there. He hasn't got the time. Even Shivika's book is ready. Shesha's book is also ready. So मुझे पता है book ready है, पर अभी मैं उनको पकड़ के भाई अपलोड करो करके नहीं बोल सकती. ये प्रॉब्लम है ना. होंगे लाइव तो सारे के सारे एक साथ बहुत सारे हो जाएंगे लाइव, और नहीं होंगे तो नहीं होंगे. पर एक चीज बताती हूँ, when you are doing it with me, आप वो कर लोगे एक बार, आराम से हो जाएगा. बाद में सेशन खत्म होने दो. ट्रस्ट मी, नहीं होता है. रिदम टूट जाएगा ना. That is Exactly. I have almost completed. I think अभी finally एक बार review करके I am quite okay with. फिर then I can do that thing. तो that was the only reason I said like from day one to you guys कि do it with me. So in that 30, अगर आप देखोगे, so by the Friday वाला thing, your almost सबका book ready हो गया होगा. By the time we meet for the 8th session, आप सबके books live हो जाएंगे. And once you get that confidence कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, it becomes easier for you to write the next book. This time you will do it at a much faster pace and much lesser time, because you know everything now. ठीक है. Yeah, possibly. Except the categories, we have to be lucky to get. And the keywords. Keywords आपने BSR में जो ढूंढे हैं, हम लोग वही Right. keywords use करेंगे. But ठीक. वो just keep your keywords ready. अगर आपका टाइप सेटिंग फॉर्मेटिंग उसी दिन कंप्लीट हो गया है, मतलब बाय द टाइम वी मीट ऑन फ्राइडे, आपका टाइप सेटिंग फॉर्मेटिंग कीवर्ड रिसर्च और कैटेगरी रिसर्च सब रेडी है, आप फ्राइडे को ऑन द स्पॉट मेरे सामने अपलोड कर सकते हैं. आई थिंक फ्राइडे इज व्हाट डेट, 24th का आई थिंक. हाँ 24th. या फिर आई कैन शो यू हाउ टू डू इट. सॉरी 25th 7 Friday, हाँ 25th है. So someone who is planning to make their book live on the 30th, उस दिन आपको 25th को अपलोड करना पड़ेगा. ठीक है. So someone who is planning to make the book live on 2nd or 3rd, by 27th आपको 27, 28 को आपको अपलोड करना पड़ेगा. So 5 दिन पहले माइनस कर लेना जो भी आपका फाइनल डेट है उससे. आज डॉक्टर मीर चले गए, नहीं है.
Yeah, so 27th तक I have to do ना upload it. Yes. I should do Yes. it 27th. Okay, guys. हाँ. आप लोग जिस जिसके भी links अभी हो जाए complete, whoever is ready, share their links pre-order के. I can tell the same batch I'm in. Others not respond. My book is already there. Buy the book and put it in the WhatsApp group. I'll buy your book as well. Yeah. I will. Everybody that. ठीक है. So that's how we do it for almost every single person. तो अभी मैं वेट कर रही हूँ. अभी वो वाले बैच में जैसे मैंने बोला ना, ऑलमोस्ट 6-7 बुक लाइंड अप है, पर कुछ नहीं कर रहे हैं. तो वो 7 ऑर्डर्स कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही आएंगे घूम फिर के. Timing थोड़ा is पीछे crucial. लगना. Timing and luck is crucial category. But what we can do is like हम लोग एटलीस्ट हमारा बुक नंबर 1 स्पॉट पे आने के लिए. See, I'll tell you my own experience. I shifted to a new place, I think 4 years back. Okay. So I remember like when people asked me like, what do you do? So when I told them, पहले उन लोग ने ना मुझे बहुत lightly लिया, and they have their own kind of groups. They don't entertain new people. That happens everywhere. So over a period of time, even I faced a lot of bias treatment and discrimination and everything for no damn reason. मतलब आज जब भी मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों किया इन लोगों ने. सो इनिशियली मैंने जब भी उन लोगों को बोला ना, ऐसे जस्ट वर्बली बोला मैंने कि मेरी बुक लाइव है अमेजोन पे, इट्स अ बेस्ट सेलिंग बुक. ओके, ऐसा हो गया. सो और मैं कभी स्टेटस अपडेट नहीं करती हूँ मेरे पर्सनल नंबर पे. So one fine day for some, I was doing some work and it was kind of, I think some testimonial or something. तो मैंने कुछ तो ना मैंने मेरा WhatsApp status पे डाला, and that WhatsApp status had linked to my had a link to my Instagram account, and on that Instagram and Facebook account मैं दोनों डाला था उस वो टाइम पे. और वहां से लोग वहां पे मेरे Instagram account पे गए, Instagram account से, कि सच्ची में ये बंदी बेस्ट सेलर है क्या, सच्ची में इसने बुक लिखा है क्या. And then they went and they checked Amazon to see if that is true. Okay, Karun, I'll see you on Friday. So, people actually check, but then, when they, क्योंकि, you will find an engineer, architect, doctor so easily, but you don't find an author so easily. तो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं aliens है. That happens. But then people start taking you seriously. अगर ऑथर होना और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर होना, उसमें बहुत फर्क होता है. No, they take me This- seriously. अभी भी seriously लेते हैं. नहीं, मुझे प्रोफेशनली सीरियसली ले लेंगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे, because I was new as well. हाँ, that happened to you because you. हाँ, that happened to me. But जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, हाँ, उनको पता है कि हाँ सोनाली बोल रहा तो कुछ काम का चीज रहेगा, टाइम पास नहीं करेगी बंदी ऐसे. So that what I'm trying to tell you is like when you have time at hand, go ahead and use it to promote your book. Go ahead and use the time to market your book, to reach out to more number of people, and probably from the known circles, like family members का WhatsApp status use कर लो, उनको tag कर लेना, so you can reach out to their audience. उनका phone पकड़ो, उनके Facebook, Instagram account पे status डाल दो, पर डालो. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे याद है मेरे फर्स्ट बुक पे आई थिंक 7 प्री ऑर्डर्स तो मेरे हस्बैंड के व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से मिले थे मुझे. ठीक है. सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. मेरी सिस्टर के व्हाट्सएप स्टेटस से मुझे 2 ऑर्डर्स मिले थे. सो थिंक व्हाट कैन बी डन. ओके, चलो. डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस फॉर मी बाय द like other than these? अंकुश, I couldn't see you at all throughout. मतलब वो आपके फोटो में मुझे तो आप दिखे ही नहीं. मैं भी डॉक्टर मीर को पहचान, क्योंकि अब मतलब कुछ नहीं दिख रहा है मुझे. See, everyone will agree. Okay. मतलब ऐसे हरी हरी झाड़ दिख रहे हैं वर्चुअल बैकग्राउंड, हाँ. एंड आपका ऐसा शैडो दिख रहा है हमको अच्छा. ऐसे.
ठीक है, चलो, I'll see you guys on Friday. In that case, just fix your camera so at least for the last 2 sessions I can see. By the way, Dr. Mir, कोई questions है क्या मेरे लिए? Yes, Ankush. We are just leaving. I'm just checking with Dr. Mir. Dr. Mir, कोई questions है मेरे लिए आपकी? आज नहीं है मैम। ओके, परफेक्ट। तो हम लोग फ्राइडे मिलते हैं अगेन 8:15 बजे, बिकॉज डॉक्टर मीर उनका सेशन लेट, मतलब जो भी है ट्रेनिंग या वॉट एवर ही डज, 8:15 विल मीट अगेन। ओके, बट सी टू इट कि आपका अमेजोन का ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड, ये 5 चीजें रेडी होनी चाहिए आपके पास जब भी हम लोग फ्राइडे मिलेंगे, क्योंकि हम लोग लाइव करेंगे सब लोग। एंड प्लीज लॉग इन यूजिंग अ लैपटॉप दैट डे। ओके, Okay. चलो, सी यू, बाय बाय, गुड Bye-bye. नाइट, टेक Bye-bye. केयर।